Good evening, everybody. We will start class after 5 minutes. So just keep your mic and video off as you have kept. We'll start exactly at 7 p.m. Okay. So just wait. Okay. By that time, let me know my presentation and my voice is clear. In chat box, you can write down that. Just let me know my presentation is visible or not. Okay. Joshi sir, keep your mic off. Yes, sir. Yeah. Joshi sir, my presentation is visible or not? Just put in chat box. I'll just brief you. We have today Arya, Samir, Amisha, and Atharva. We are waiting for one more person. If he joins in next 2-3 minutes, we will wait because we are supposed to start by 7 p.m. And in case he doesn't join in next 3 minutes, we will start by 7 or 7:01. Okay. So just we will not be having any talks from your side, but then I want you to check your mic. Arya Matre, please switch on your mic and just say whether I'm audible. You are audible to me. Yes, sir. Okay. Now you can switch off. Samir, you can switch on your mic. Samir, I think he is not there or I'm not audible to him. Aditya sir already told. Amisha, switch on your mic. Yes, sir. Okay, great. Switch off. Atharva, just start your mic and say hi. Hi, sir. Okay, great. Good. So now we will wait for other person. I'll just once again check whether Samir, you are able to hear me? Samir, probably there is some network issue for him. Now some common instructions to all of you before the last person joins. We have tremendous network issue. We have tremendous electricity issue. We will try our best that classes will not be affected by this. We are expecting around 40 hours of sessions for every subject to complete the syllabus. And we are very positive and hopeful about that. So you don't get panic. You are quite now quite what you can say mature enough to understand that covering syllabus, making you understand the things is far more important than having it in stipulated period of time. Okay. So we will do that. So nobody should be panic. Neither like 4 or 5 people you will be there. We have different criteria to select the student. So accordingly, we have
we have thought of not going beyond 20, but I don't know, students are not so positive presently about online. So we are having very less student, but it will be beneficial for you only. Okay. So we will do one thing. It is already 7:01. So we will start our class. Okay. Considering that I am audible to everyone, we will start with our presentation immediately. And this is being first lecture. We'll start with a very, very simple general introduction sort of thing. So now just wanted to know whether this first slide is visible to you or not. Just put in your chat box, all of you. Yes, yes, very good. Okay. Now one very important instruction is when my voice is clear to 1-2 people, when my presentation is visible to 1-2 people, it makes clear that my network area is good. My network connection is quite good to receive and send the data. So in case some student or some participant is not able to hear voice properly or is not able to see the presentation, it is little, what you can say, blame to his network area. So probably you should check your network. Okay. But then you can keep writing in the chat box. I will keep checking that. Now, this is today's first lecture. We start now. I welcome you all to 11th Science and 11th Physics, as this is the first lecture. This is lecture 1, and that is what I have written in my slide. We'll go to the next part. I'll rotate my screen. So anybody, now there are so minimal number of students. If you face any problem, you can switch on your mic and in a very disciplined way, you can convey your concern to me. But it is possible and acceptable till we have 5-6 student or 10 student and all are very disciplined. But it is not possible if we cross that limit and in case somebody starts misbehaving. So presently it is acceptable being first class. Now I need not read anything for you. I just want to elaborate something on what is the need of science. Now, really speaking, I welcomed you all for this particular science discipline and then for the physics with the only intention that since last 24 years, I am working in science field, and what I am enjoying foremost thing is lot of appreciation. Okay, there is too much value and respect for the people having knowledge of science from all walks of life and in all industries, practical approaches, wherever and whenever you go. People hear that you are science graduate, you are your engineer, people respect you a lot. And there is one very important reason for that. And what is that reason? The people with a science education background has got understanding of scientific processes, statistics, data analysis, which help them to make well informed people and effective decision makers. अभी ये सब जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ये सारी चीज मैं हिंदी में भी दोहराऊंगा. If you want, I will repeat it in the Marathi also. But then kindly write in your chat box, which I will check after 5 minutes. All of you are comfortable in Marathi, but we are not going to write exam in Marathi. Neither in future you will be using much Marathi for the technical correspondences in your life. So you better get used to simple English. In case you are not habitual, you will get habitual. Just try practicing. Second part is Hindi being national language, and there will be a lot of Cosmo crowds which will be joining at a later stage for this particular class. I personally feel that इंग्लिश के बाद मैं हिंदी इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मराठी. तो सबको समझ में आता है साइंस की जरूरत है, क्योंकि साइंस पढ़े हुए लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है. कारण सिंपल है कि भाई साइंस पढ़े हुए लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक प्रोसेसेस है या कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस है, इस चीज में उनका दिमाग इतना चुस्त हुआ रहता है कि जब भी और जहां भी जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसका नॉलेज डोमेन मतलब ही इज वेल इन्फॉर्म्ड. और क्या कि भाई ये डिसीजन जब लेता है तो एक एनालिटिकल डाटाबेस के ऊपर सोच समझ के लेता है, ऐसे हवा में नहीं लेता है. अब ये सबको एप्लीकेबल नहीं होती है, बट जब साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को या व्यक्तियों को ये सब एप्लीकेबल है. सेकंड इंपॉर्टेंट, साइंस इज वैल्यूड बाय सोसाइटी बिकॉज एप्लीकेशन. आपके घर में किचन से लेके टॉयलेट बाथरूम से लेके बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से लेके
आप अगर इवन कैंसर के क्यूर की बात करो या फिर आप क्लीन एनर्जी की बात करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जितने नए और आप बड़े बड़े वर्ड्स इंटरनेशनल फोरम में सीखोगे, वो सारी चीजें जो है वो साइंस की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा पार्ट जो यहाँ लिखा है वो चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा पैराग्राफ है, मैं जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि ये पीपीटी मैं अपलोड कर दूंगा नेट पे, आप उसको देखिए फुर्सत से। तीसरा पार्ट है एजुकेशन। आप बोलेंगे मतलब ये होता है कि मैं इस प्रेजेंटेशन से थोड़ा बाहर आता हूं ताकि मैं अपना चैट बॉक्स देख सकूं। ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं चैट बॉक्स। अभी मुझे कुछ, मैं एजुकेशन का टॉपिक कवर करता हूँ। आई जस्ट वांटेड टू नो अथर्व शेल के साइरस केल्विन कौन है? साइरस प्लीज स्विच ऑन योर माइक फ्रेंड। साइरस जी माइक ऑन करिए। आप मेरे लिए नए हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। साइरस लेफ्ट वेरी गुड। ओके, नाउ कम टू संकल्प। संकल्प, you cannot join late. Okay, it is not matter of money which you are going to give us. It's a very clear. It is the Yeah, first sir, lecture sorry. of, no, that is fine, no need to say sorry. Sorry will not clear each and everything, and don't switch on your mic unless until I tell you. Okay, switch off your mic. Our classes run on a single principle of discipline and sincerity and systematicness. If you have 97 percentage, it doesn't mean that you will behave as you like. We have simple and plain understanding. डिसिप्लिन फर्स्ट। 7 बजे का लेक्चर है, 7 बजने में 5 मिनट पहले आपको क्लास में होना है। आपको लिंक में डाल दिया गया है इसीलिए ताकि आप अपनी इच्छा से अंदर बाहर कर सके। हम पकड़ के चल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे और डिसिप्लिन बच्चे हैं। इस 10th के रिजल्ट की खासियत ये है कि मुझे नहीं लगता है किसी को 70% के नीचे मिले हैं। सारे बच्चे जब भी जहां भी मिलता हूं मैं, सबको 70 के ऊपर और 100 के नीचे है। तो ये सब चीज में आप अपनी सिंसियरिटी इसलिए बनाए रखेंगे क्योंकि नहीं तो मेरा क्या है ना, आई आई रन अराउंड दैट टॉपिक, मैं दूसरे टॉपिक पे चला जाता। तो आपने जो मिस किया उसको मैं आपके लिए, क्योंकि दिस इज बीइंग फर्स्ट क्लास, आई जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट अगेन। आई होप आई एम विजिबल टू एवरीबडी माय प्रेजेंटेशन। वी वर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। एक चीज हमने बोली कि भाई 11th का क्लास है तो सबको मैं वेलकम किया, एंड देन वी वेंट इनटू कि नीड ऑफ साइंस क्या है, देन वी विल टॉक अबाउट नीड ऑफ फिजिक्स क्या है। साइंस के नीड में हमने पहले बोला कि बहुत रिस्पेक्ट मिलता है साइंस पढ़े लिखे व्यक्ति को, क्योंकि उसका दिमाग दिमाग जो है, मस्तिष्क, उसका विकास अच्छे से हुआ रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस जो साइंटिफिक प्रोसेसेस, जो स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिसिस हम सीखते हैं, वही चीज है जिससे दिमाग का विकास होता है। तो मतलब आपने साइंस पढ़ लिया तो एक सिंपल चीज कर ली कि एजुकेशन नाम के प्रक्रिया में आपने अपने आप को ज्यादा तकलीफ दी, तो भविष्य में दिमाग का इस्तेमाल करने की जब बारी आएगी तो आप सबसे थोड़ा आगे रहोगे 2 कदम। और इसलिए मैं बहुत लोगों को एडवाइस भी करता हूं कि 11th-12th तक साइंस लेना चाहिए, भले आप बाद में कुछ और चूज करें। और इसमें कुछ लोगों के डिसीजन फैमिली के साथ बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनको यूपीएससी करना है, बट देन ही हैज चोजन फॉर द 11th-12th साइंस। ऐसे और भी जो यहाँ हर बच्चे को मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि आप बहुत कम क्वांटिटी में। देन वी टॉक्ड अबाउट द साइंस is valued in society because of the applications science has given to the humanity. आपको मालूम नहीं होगा बट 21 नवंबर 2017 में हेड ट्रांसप्लांट मतलब शरीर के साथ सर जोड़ने की प्रक्रिया के ट्रायल्स इटली में शुरू हुए। यह अजीबोगरीब कारनामे सिर्फ साइंस और साइंटिफिक सोच के कारण होते हैं। तीसरा मैं एप्लीकेशन साइंस का बता रहा था कि आपको साइंस के लिए इतनी इज्जत इसलिए मिलती है कि साइंस का एक छुपा हुआ इस्तेमाल है जो इतना अच्छे से मार्केट में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एंड दैट इस्तेमाल इज एजुकेशन। आप बोलोगे मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, ऑफलाइन एजुकेशन हो गया, बहुत सारे प्रेजेंटेशन, टीचिंग एड्स टीचर लोग इस्तेमाल करते हैं, सारा तो साइंस का ही नहीं। साइंस का पहला काम है कि लोगों के दिमाग में सही मायने में यूनिवर्स के बारे में जानकारी दे, ताकि गलत फहमियां जो है, आपको मालूम नहीं होगा बट हर 50-100 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है और हर घर और हर जात धर्म भाषा में अंधविश्वास बदलते हैं। ये सारी चीज का रिफॉर्मेटिव चेंज आना चाहिए। ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है जो 50% वाला साइंस पढ़ा हुआ आदमी भी कर सकता है और 95% वाला भी कर सकता है। 99% वाला भी अंधविश्वास वाला हो सकता है
और गारंटी है कि फेल्यूर लोग जिनको मिलता है वो भी अंधविश्वास वाले होते। तो ये एक जो चीज एड्रेस नहीं की गई वो साइंस की करने की जरूरत है, और यही विज्ञान के या साइंस के एजुकेशन की जरूरत है। To summarize, I would like to say the last paragraph of this particular slide: physics, chemistry, biology, all of it means all of them are part of science, rest on a core fundamental. ये सारे एक core fundamental principle पे चलते हैं, which can be studied and examined in a variety of ways. Every piece of research, silly or not, increases our understanding of the universe, which is the entire point. साइंस पढ़ने के पीछे आप सोच रहे होंगे, कोई बोलेगा मैं नर्स बनूंगा, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलेगा मैं यूपीएससी करूंगा, कोई बोलेगा मैं सीईटी दूंगा और एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा। Irrespective of this, you should have one very important agenda which is indirectly addressed when you are opting for science education, is that you are understanding the universal facts in a very refined and detailed way. आप बहुत अच्छे तरीके से दुनिया को जानने के लिए सक्षम हो रहे। तो मैं फिर से अभी ये स्लाइड के बाद वापस आता हूं, और मैंने आपको कितना बोर किया ये आपको इस पर्टिकुलर चैट बॉक्स में लिखना है। तो चैट बॉक्स में आप लिखेंगे कि जो मैंने अब तक बोला, क्या इसमें से कोई चीज आपको नहीं समझी है, ऐसा है क्या? मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है, हिंदी की जगह मराठी में बोलना है? काइंडली पुट योर ओपिनियन इन चैट बॉक्स। एवरीबडी नीड टू पुट दैट, बिकॉज ये क्लास आपके लिए हो रही है, मेरे लिए नहीं, प्लीज। चलो, अथर्व, आर्या, अमीशा, सॉरी और बच्चे लोग का नाम भूल गया मैं, संकल्प, समीर, समीर ने नो लिखा, अथर्व ने भी नो लिखा, बाकी लोग, आर्या, बाकी लोग सबका नाम लो, अमीशा, हाँ सबको याद दिलाना पड़ेगा। ओके ठीक है, मतलब यू आर कंफर्टेबल। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ स्लाइड। मैं आज आपको जनरल जस्ट इंट्रोडक्शन जैसा ले रहा हूं, आप बोर मत हो जाइए क्योंकि ये जरूरी है। वी टॉक्ड अबाउट नीड ऑफ साइंस। अगर इंटरनेट ढूंढोगे तो मैंने यहाँ 4 पैराग्राफ लिखे, वहां पे 4 लाख पैराग्राफ भी मिल जाएंगे, पूरा थीसिस लिख सकते हैं आप, पीएचडी कर सकते हैं। बट देन नीड ऑफ फिजिक्स, ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स जब से इंसानी सभ्यता है तब से मैं है ऐसे बोलूंगा तो आप हाँ बोलोगे, बट जबकि मैं उसके आगे जाके ये बोलूंगा, जब से जीवों का निर्माण हुआ और उनके दिमाग का विकास होने लगा, तब से भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग लोगों को है। क्यों? क्योंकि इंसान ने अगर आज तारों के बारे में इतनी सारी जानकारी ली है, तो डायनासोर ने भी तारे देखे थे और बंदर ने भी देखे थे। सिर्फ डायनासोर उसके ऊपर रिसर्च या ज्यादा दिमाग नहीं चला पाए, इंसान ने ज्यादा दिमाग, बंदर ने ज्यादा दिमाग चलाया, तो आज हम लोग हैं कपड़े पहन के बंदर। तो ये जो है ये है फिजिक्स। द गोल ऑफ फिजिक्स इज टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. Courses in physics reveal the mathematical beauty of the universe at scales ranging from subatomic to the cosmological, मतलब माइक्रोस्कोपिक टू द मैक्रोस्कोपिक। अगर आज आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे कि प्रोटॉन का डायमीटर क्या है और यूनिवर्स का डायमीटर क्या है, तो ये जो नीचे की तरफ का स्केल है इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, ऊपर वाले को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। ये मेरी तरफ से मैंने 2 शब्द जोड़ दिए जिसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। Studying physics strengthens quantitative reasoning, problem solving skills that are valuable in areas beyond physics. ये जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालिसिस, ये आपके जिंदगी का फाउंडेशन है जो एजुकेशन, मैथमेटिक्स और साइंस ले करता है। आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास का कोई प्रैक्टिकल्स नहीं होता। इसका कारण है कि इतिहास कोई साइंटिफिक फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए नहीं, it is to note down the details of the past, but science is to explore, discover and prove the details of past and to use it for the future. मैं आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाके बोल रहा हूं क्योंकि आज जिस क्लास में या जिस लेवल पे आप खड़े हो, फिर अथर्व होगा या अमीशा होगी या आर्या होगी, आप ये पकड़ के चलो
कि this next 2 years of your life is going to lay foundation of your future life till you are there on this earth. आप पृथ्वी पे जब तक हो इस जन्म में, तब तक आप जो करने वाले हो इसका फाउंडेशन ये 2 साल में होने वाला। तो नो हेयर एंड देयर, सिर्फ पढ़ाई करनी है, बट कैसे एंजॉय करके करनी है, इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि दुनिया के 4 से 5% लोग ग्रेजुएट होते हैं, तो उसमें से 10-20% लोग साइंस ग्रेजुएट होते हैं, तो उसमें से 10-20% लोग जो है वो सही मायने में साइंस का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 1 या आधा% लोग वैज्ञानिक सोच रखते हैं। अभी ये जो मैं बोला इसको आप जब यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा यही, तो शांति से सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, यू आर ऑन द पाथ ऑफ डूइंग समथिंग ग्रेट, नॉट फॉर यूर सेल्फ। अब अपने लिए कोई महान चीज करने नहीं जा रहे हो। आप जो चीज करने जा रहे हो वो अगर शिद्दत से दिल से करोगे तो आप इंसानियत के लिए कुछ करने के लिए सक्षम बनने जा रहे हो। सो लेट्स गो टू द फर्दर। Those who study physics related fields are prepared to work on the forefront ideas in science and technology. In academics, the government or the private sector, career might focus on the basic research in astrophysics, cosmology, particle physics, atomic physics, photonics, or condensed matter physics, or in more applied research areas such as renewable energy, quantum information science, material development, biophysics, or medical physics. You will be shocked to know career could also include teaching, medicine, law. आप बोलोगे फिजिक्स में लॉ? नहीं, फिजिक्स का लॉ नहीं बोल रहा हूँ, वो लीगल वाला लॉ ही बोल रहा हूँ, मतलब एलएलबी बनने वाला लॉ। बट यहाँ पे आपको पढ़ने में वो चीज पढ़नी है या वो चीज आपको इस्तेमाल करनी है जो पेटेंटिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड है। साइंस राइटिंग, हिस्ट्री ऑफ साइंस, फिलोसॉफी ऑफ साइंस, साइंस पॉलिसी, एवरी पॉलिसी, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट इन टेक्निकल फील्ड्स। अभी मुझे एक ही लोग फोन करते रहते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ जानना चाहूंगा बीच बीच में, आर यू एबल टू हियर माई वॉइस? यस और नो? क्योंकि बीच में फोन आया तो मेरा वॉइस चला जाएगा आपके लिए। यस और नो? हाँ, ओके, ठीक है, मतलब आपको सुनाई दे रहा है। तो आपको सुनाई नहीं देगा तो मैं अभी तो कोई वॉलेंटियर नहीं दे रहा हूं, बट जो अच्छे से रहेगा उनको एक वॉलेंटियर बना के आपको माइक ऑन करके मेरे से बात करने की पूरी परमिशन है, अगर आपको बीच में कुछ तकलीफ है। सो लेट्स गेट इनटू कि मैं बता रहा था, सॉरी, कोई बीच बीच में कॉल कर रहा है तो मैं मेरा फोन जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल देता हूं, ताकि अभी आ ही भी नहीं रहा वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड वाला, सॉरी। चले फिर से अपने क्लास में। तो क्लास में हमने बात की फिजिक्स की जरूरत यह है क्योंकि फिजिक्स आपको सिखाता है, समझाता है, अंडरस्टैंड करवाता है हाउ थिंग्स वर्क, और इसके लिए बहुत सारे फील्ड आप चूज कर सकते हैं, और ये बहुत सारे फील्ड चूज करने के बाद जो करियर ऑप्शंस आपके लिए खुलते हैं वो किसी भी और फील्ड से ज्यादा और बेहतरीन टाइप के होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ऑब्वियसली 11th फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ना कि जनरल टॉक्स पे मैं बात करने वाला। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंट्रो टू द 11th फिजिक्स बुक। आपकी जो पूरी किताब है उस पड़ेगा, नेटवर्क है क्या, आवाज आ रही है क्या? सॉरी, बट ये हमारे यहाँ होता रहता है। आर यू एबल टू हियर मी? आप देखिए, नेट डाल दीजिए चैट बॉक्स में। नो इट सिम्स, कोई एक मुझे माइक ऑन करके बताए प्लीज। माइक ऑन करने के लिए अभी परमिशन किसे दे? समीर प्लीज स्विच ऑन योर माइक।
वो सबकी लाइट चली गई। आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? ये सॉरी बस ठीक है। हो क्या रहा है कि यहाँ लाइट बारिश इनका सबका बड़ा प्रॉब्लम है। तो बाकी बच्चे लोग जो है, जैसे कि नाउ वी हैव टू वॉलंटियर समबडी, सो वी विल वॉलंटियर अथर्व ओनली। अथर्व, आप माइक ऑन करके मेरे से बात कर सकते हैं इन बिटवीन, अगर आपको आवाज वगैरह नहीं आ रही है तो। अभी बीच में क्या हुआ इसके लिए मुझे अथर्व माइक ऑन करके थोड़ा अपना फीडबैक दीजिए। हाउ मच टाइम यू आर नॉट एबल टू हियर मी? 2 to 3 minutes, sir. अथर्व, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। 2 to 3 minutes. ओके, 2 to 3 मिनट। एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज यहाँ पे बहुत जोरों से बारिश हो रही है, तो ऐसे ऐसे पकड़िए, मैं चेरा पूंजी में खड़ा हूँ। ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद दिस, और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि ये बारिश का टाइम है, तो हम लोग उसको बंद कर देंगे। बट नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटली आई एम ऑडिबल, ऐसे पकड़ के मैं चलता हूँ। तो आई जस्ट अगेन गो बैक टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, so you will be able to see the screen. Okay, so I was here, I was talking to you about this. What we are going to learn is 11th physics. पहले बुक का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और फिर आप जैसे आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप are you able to see the screen, chat box? Are you able to see the screen? चैट बॉक्स में लिखना है आपको। आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? आपको आवाज तो आ रही है। अथर्व, आई एम टॉकिंग जो फिजिक्स है 11th sir. का, इस 11th के फिजिक्स में हम पढ़ने वाले टोटल 14 टॉपिक्स। इस 14 टॉपिक्स में ओके ओके ठीक है, ये जो 14 टॉपिक्स है इसमें आप, मतलब जैसे मेरे जैसा बच्चा जब 11th फिजिक्स पढ़ता था या कोई भी टॉपिक पढ़ता था, तो मैं ये हमेशा सोचता था कि कितने पन्ने पढ़ने हैं ये साल में। तो आप देख सकते हो 256 पन्ने पढ़ने हैं। तकरीबन 14 टॉपिक है, मतलब आपको एक तकरीबन 15 से 20 के बीच में हर टॉपिक का लेंथ रहेगा लेसन का। आप देख भी सकते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज 15 पेजेस, मैथमेटिकल मेथड्स इज अगेन 15 पेजेस। सो हम इसमें से एक एक टॉपिक खत्म करेंगे। इस तरीके से हम लोग 40 पीरियड में ये सब खत्म करेंगे। मुझे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आप बड़े बच्चे हो गए, आपको कुछ चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो क्लैरिटी ये है कि आपको करना क्या है। ये जो फिजिक्स चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, बायोलॉजी चलेगा, मैथमेटिक्स चलेगा, मैथमेटिक्स 2 चलेगा, ये सारी चीज में आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाओगे पढ़ाई का। आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करोगे, जो हर एक का अलग है। कोई बीएससी करना चाहता है, कोई नर्सिंग करना चाहता है, कोई बीएमएस करना चाहता है, कोई यूपीएससी करना चाहता है। फिर आप उस इंटरेस्ट के लिए भी एक सेपरेट स्लॉट रखोगे। देन try to understand whatever you are reading or listening.
ये एजेंडाज रहेंगे आपके ये साल के, और उसके बाद एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। तो ये चीज करते वक्त आज हम जब अपने एक्चुअल लेसन में जाएंगे, टुडेज सेशन यूनिट एंड मेजरमेंट, देन वी विल नॉट गो थ्रू द प्रेजेंटेशन मोड, वी विल गो टू द पीडीएफ ऑफ आवर बुक और उसको यूज करेंगे। क्लास चालू होने के पहले ही होमवर्क बता देता हूँ, जिनको करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं है। गूगल क्लासरूम में आपको ऐड किया जाएगा ये वीकेंड तक, और ये सारा होमवर्क आप गूगल क्लासरूम में ही अपलोड करेंगे। तो प्रिपेयर स्टडी टाइम टेबल, इफ यू फील we will upload it to the Google Classroom. Write brief note on your interest. So accordingly, all classes will be focused on your interest. Target after 12th क्या है, इसकी clarity हमको एक नोट द्वारा दे दीजिए। And revise syllabus covered today. आज जितना भी हम कवर करेंगे वो आपका होमवर्क होगा। ये है आपके लिए थैंक यू वाला, खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ, क्योंकि इतना देर मैंने जो किया वो क्लास नहीं था। इतना देर हमने जो भी पढ़ा वो था इंट्रोडक्शन टू द लेक्चर। तो 25 मिनट हमने इसमें, आप समझ सकते हैं कि गवाए बोल सकते हैं, यूज किए बोल सकते हैं, वेस्ट किए बोल सकते हैं, चॉइस इज अप टू यू। मैं सिर्फ ये पकड़ के चल रहा हूं कि आपको ये जो 40 इंटू 4 5 6 जो सब्जेक्ट है, इनके जो एक 150-200 लेक्चर्स होंगे, इसमें आपको ये फील आना जरूरी है कि जो बहुत सारा खर्चा फिजिकल क्लासेस में जाने के बाद 11th-12th में होता है। अभी आप सब लोग जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, यू नो वेयर फीस फॉर द 11th-12th इज लेस देन 1 लाख रुपीज, एंड आवर फीस इज नॉट इन 10% रेंज। तो अगर ये 10% में भी आपको उतना ही मजा आना है तो अकेले टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे। जो दिया काम वो आपको करना पड़ेगा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको करनी पड़ेगी कि जो काम आपको दिया और समझ में नहीं आया वो आपको टीचर को पूछना है। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर गाइड। Your regular academics teachers will be different teachers. Somebody will be teaching from Bihar, Patna. Somebody will be teaching from the Gujarat. Somebody will be teaching from America. Somebody will be teaching from Mumbai. Somebody will be teaching from Shridon UPSC hostel. ये सबका आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी रखना है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के तय ये कैसा चल रहा है। दोस्त फीडबैक यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। तो आज के लेक्चर का भी एक 2 लाइनर, 3 लाइनर, 2 सेंटेंस, 2 पैराग्राफ का फीडबैक आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। फीडबैक मिला मतलब हमको आपका ओपिनियन समझेगा, फीडबैक नहीं मिला मतलब लेक्चर ठीक चल रहा है ऐसा हम पकड़ के चलेंगे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द टुडेज सब्जेक्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज 11th फिजिक्स। तो 11th फिजिक्स का जो किताब है उसे मैं खोलने जा रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया आए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। मेरी कुछ थोड़ी गलत आदतें हैं, उसमें से पहली आदत है ये कि मैं बचपन से किताब की कवर से शुरू करता हूँ। तो आप इसके लिए ना थोड़ा मुझे मतलब बुरा मत मानिए, बट जरूरी है, क्योंकि किताब डिफाइन करते वक्त लिटरली जो लोगों ने जिंदगी में सिर्फ फिजिक्स पढ़ा, ऐसे कई लोग रहते हैं जो ये सब चीज पढ़ते हैं। ओके, सो अगर हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं तो आपने जैसे देखा ही 11th के फिजिक्स के किताब के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सीनिक ब्यूटी दिखाई है, एंड दैट आई जस्ट कम बैक। ये गलत जगह पे खुला, हम इसको सही जगह पे खोल देते हैं। दिस इज दैट प्लेस। तो ये है आपका कवर पेज। ये क्या है ये आपको चैट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट इज जो प्लांट साइड दिखाई गई है, इतनी वीरान अमेज़न जैसी जगह पे, मतलब एकदम सिर्फ जंगल जंगल है, वो क्या है। स्पेशली ये जो गोले गोले दिखाए जा रहे हैं ये क्या है, ये नीचे वाला लाल लाल क्या है, और उसके नीचे वाला ग्रीन और काला क्या है। ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने 11th में जाने की खुशी में 11th का किताब खोल के देखा। चलो चैट बॉक्स में लिखो जल्दी। You have to write what is there on the cover page of 11th physics book. First is that pictorial view and second is that particular graph. आवाज आ रही है कि नहीं वो भी लिख दो। अथर्व, you can switch on mic. I'm audible or not? Yes, sir, audible. तो लिखो भाई मेरे दोस्त, लिखो जल्दी चैट बॉक्स में क्या दिखाया।
इस तरीके के स्टूडेंट किसी को भी पसंद नहीं है। आप ये सोच के चल रहे हो कि आपको सब कुछ स्पून फीडिंग मिलेगा, देन यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आप सब लोग, कुछ बच्चों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, यू ऑल आर वेरी सिंसियर टाइप ऑफ स्टूडेंट। ये सिंसियरिटी जिस दिन कम हो गई उस दिन आप रास्ते पे आ गए, ऐसा पकड़ के चलो। दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है सिंसियरिटी। ये चीज आपने पढ़ी नहीं थी, न्यूज़पेपर भर के आ रहे थे, लोग जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि कोई चीज थेरोटिकली बोली गई, उसमें इंडियन साइंटिस्ट टीम का भी कंट्रीब्यूशन था, और उस चीज को जब प्रैक्टिकली लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो उस चीज का इतना नाम हुआ कि इंडिया में भी वो प्रोजेक्ट्स चलने लगे। अभी उस प्रोजेक्ट का नाम है लिगो। व्हाट इज दैट? लॉन्ग फॉर्म लिखो लिगो का। ओए अमीषा सावंत जी, अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मत जाइए, ये लीगो है। क्या है लीगो? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। सुना है कि नहीं है आप लोगों ने ये नाम? यस और नो? बाकी लोग लिखो जल्दी। ये इस तरीके, आपको मैं माइक ऑन करने नहीं दूंगा, आपको चैट बॉक्स में ही लिखना पड़ेगा। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। समीर ने सुना ही नहीं था। आर्या सुना था कि नहीं? आर्या? नो। चलो और कौन है? संकल्प। संकल्प सुना था कि नहीं आपने ये सब? यस, ठीक है। तो आप यस भी इतना लेट लिखते हो, कोई जबरदस्ती क्लास में बिठाया हो तो पढ़ बैठिए आप लोग। सी एक चीज है, मैं एक बच्चे को भी पढ़ाने में उतनी दिलचस्पी लेता हूँ जब मैं एक 5,000 बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आपको जिनको पसंद है वही बैठेंगे क्लास में, बाकी लोग जबरदस्ती मत बैठो, क्योंकि जवाब देना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज आपके लिए चल रही है। हम लोग का पढ़ के हो गया, नौकरी भी लग गया। ओके, नाउ कम टू द दैट पर्टिकुलर पार्ट। आप ये जो देख रहे हो वो वही है, अमेरिका की लीगो का साइट। फिर उसका इंडिया में भी प्रोजेक्ट है, बट नाउ व्हाट दे आर सर्चिंग फॉर द ग्रेविटेशनल वेव्स। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स का एक जो मेजर रीडिंग लिए गए, किसके लिए? स्ट्रेन के लिए। अभी स्ट्रेन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। इट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ वगैरह वगैरह है। वेलोसिटी चेंज दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सुनने में देखने में हिंदी पिक्चर वाली लगती है, ऊपर दो ब्लैक होल दिखाए गए, एक दूसरे के इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं, खींच रहे हैं ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण, खींचते खींचते साथ में आ गए, एक दूसरे से टकरा गए, टकरा के फाइनली उन्होंने रिंग डाउन कर दिया, मतलब मर्ज हो गए और रिंग डाउन हो गया। और इस मर्जर के कारण जो यूनिवर्स में एक वेव चली, वो उस वेव को अगर हम बोले कि ये ग्रेविटेशन वेव थी, तो उस वेव के डिटेक्शन के लिए जो लेबोरेटरी बनाई गई वो ये है। अगर आप ये सब चीज में दिलचस्पी भी नहीं रखते हो तो भी कल यूपीएससी के इंटरव्यू में भी आपको ये पूछा जा सकता है। कल इंजीनियरिंग में जाओगे और इंजीनियरिंग में कोई फिजिक्स रिलेटेड कंपनी में जाओगे या जीआरई दे के फॉरेन जाओगे तो भी आपको पूछ सकता है। सो ये सारी चीजें आपको पढ़नी जरूरी है, क्योंकि ये इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशन है, इसलिए ये जो नया वर्जन ऑफ किताब आया इसमें ये सब डाला गया। नाउ सेकंड कवर पेज पे मैं जाऊंगा नहीं, जी कितने लोगों ने बनाने में कंट्रीब्यूट किया। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, नेशनल एंथम, प्लेज, ये सब बाय हार्ट होना चाहिए यंग बच्चों को। ये जो पर्टिकुलर सेशन है, इस चीज को मुझे मालूम नहीं आप लोग कितना तवज्जो देते हो। प्रीफेस आज घर पे सब लोग पढ़ेंगे। इसमें ये लिखा गया समराइज्ड फॉर्म में कि ये किताब का डिजाइन जो है 11th फिजिक्स के, 11th के केमिस्ट्री के, 11th के बायोलॉजी के, 11th के मैथमेटिक्स के, 11th के इंग्लिश का इस तरीके से किया गया है कि जो बच्चे एलिमेंट्री लेवल से सेकेंडरी लेवल पे आए, सेकेंडरी लेवल से हायर सेकेंडरी लेवल पे जाएंगे, मतलब 11 12, और उधर से वो जाएंगे प्रैक्टिकल दुनिया में, जहां पे वो सीखेंगे ऐसे टेक्निक्स, टैक्टिक्स और एक्सपेरिमेंट जिससे वो दुनिया में जाके प्रैक्टिकली काम करेंगे। कोई रिसर्च का करेगा, कोई एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट का करेगा। तो उसके लिए 11 12 के किताबें किस तरीके से उसका दिमाग, उसका नॉलेज, उसका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये मैं पढ़ते बैठूंगा तो ये मेरे लिए हो जाएगा, या आपको पढ़ना है एक ही पन्ना है। नीचे का पन्ना टीचर्स का मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। उसमें बहुत अच्छे से लिखा है कि बच्चे पढ़े ना पढ़े, टीचर को पढ़ाने के पहले 2-3 बार टॉपिक पढ़ना चाहिए।
मैं 4-5 बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाया, तो आप समझ सकते हो कि मैंने मेरे हिस्से की मेहनत कर ली, जबकि मैं यही करता हूँ फिर भी क्लियर कर ली, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज दी गई है जो आपको भी शायद पढ़ने में मजा आएगा। देखिए आपके स्क्रीन में एक चीज दिख रहा है, यूज QR कोड गिवन इन द टेक्स्ट बुक, कीप चेकिंग द QR कोड फॉर अपडेटेड इंफॉर्मेशन, certain important links, websites have been given for references. Also, the list of reference book is given. Teachers as well as students can use these references for extra reading and in-depth understanding of the subject. मुझे बहुत सारे लोग ये एक सवाल पूछते हैं, सर आप साइंटिस्ट हैं तो मुझे साइंटिस्ट बनना है, कैसे बनूं? इन्होंने इतने छोटी चीज में सारा चीज कवर कर दिया। कोई भी चीज, फिर वो इकोनॉमिक्स हो या फिजिक्स हो या सोशल स्टडीज हो या फिर ज्योग्राफी हो, इन डेप्थ पढ़ने के लिए एक होता है टेक्सचुअल कंटेंट जो आपके किताब में है, जो आपको स्कूल में दिया जाता है, दूसरा होता है एक्स्ट्रा रीडिंग। ये एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए इन लोगों ने हमको कुछ रेफरेंसेस दिए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, हर एक किताब 700-800 रुपए का है। मैंने आज अमेजोन वगैरह पे देखा, फिर मैंने अपना तरीका अपनाया कि भाई फ्री PDF वगैरह अवेलेबल है क्या, तो दोज में बी अवेलेबल। जिनको फिजिक्स में दिलचस्पी है या अपने पास कलेक्शन ऑफ बुक्स बढ़ाने का इंटरेस्ट है, कभी कभी छुट्टियों में काम आते हैं, वो इन रेफरेंस बुक को डाउनलोड करेगा और प्लीज मुझे भी एक कॉपी भेजेगा। ओके, नाउ विल गो फर्दर। खरीदने की जरूरत नहीं है, खरीदना कब है वो बताऊंगा। इफ इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट साइट, काइंडली डाउनलोड इट। सो ये जानकारी है कि फ्रंट पेज पे क्या दिया, अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया। Now they have categorized your physics into 14 lessons, but in sub units or areas of specialization, जिनको उन्होंने units, measurements and tools बोला, motion and gravitation बोला, properties of matter बोला, sound and optics बोला, और फिर आगे जाके electricity and magnetism and communication and semiconductors। आप बोलेंगे ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? जब तक ओवरऑल आप फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो इसका आपको अंदाजा नहीं आएगा, आप एक दूसरे को, मतलब जो पढ़ाया जाएगा, जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, इनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। टुडे विल बी गोइंग थ्रू दिस टॉपिक कॉल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। इस टॉपिक में अभी हम शुरू कर रहे हैं, पर उसके पहले थोड़ा मैं वापस आके आपके चैट बॉक्स में जाना चाहूंगा। इफ somebody has written anything, okay? So किसी ने कुछ लिखा नहीं है, बट ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया ये फुल एंड फाइनल हो गया। इसके बाद इस तरीके की जनरलाइज्ड बात फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स के क्लास में नहीं होगी। मैंने सबके लिए 11th साइंस के क्लास की ऐसे ऑनलाइन की एक ब्रीफिंग दे दी कि किस तरीके से साइंस के बच्चों को सिंसियर, सिस्टमैटिक और प्रॉपरली प्लानिंग करना चाहिए। Those who are not systematic are actually going to suffer in the long run। ये साइंस और साइंस स्टडीज हमको सिखाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है तो मुझे एक ही चीज जानने की बड़ी उत्सुकता है कि बिफोर वी लीव एवरीबडी विल पुट कंप्लीट डिटेल्स इन चैट बॉक्स कि आप क्या सोच के ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, या आपका 12th के बाद का टारगेट क्या है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक। वी आर एट 7:40। अपने पास 20 मिनट है, बट मैं 20 मिनट नहीं पढ़ाऊंगा, 10 मिनट ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपको जो मैंने जनरलाइज्ड होमवर्क दिए और ये जो है आज का, ये आप, मैं जो थोड़ा पढ़ाऊंगा ये आपको घर पे पढ़ना है, उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने हैं, इंटरनेट पे इस टॉपिक के बारे में ढूंढना है, एंड आपका जो ज्ञान है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग के माध्यम से थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना है। तो नाउ वी गो इनटू द आवर टॉपिक। पर मेरी एक आदत है, तो थोड़ा वो आदत से मजबूर हूं तो करना पड़ेगा। जस्ट पुट इन योर चैट बॉक्स कि मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है और आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है। यस और नो? पुट दैट इन चैट बॉक्स। ओके, ठीक है, गुड। So now let's get into something different, which is your basic topic. Okay? ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट मेरा फेवरेट था, क्योंकि पूरे मार्क्स देके जाता है। कोई आपको फ्री में पूरे मार्क्स देगा तो नाराज थोड़ी ही करेंगे उसको। तो ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट।
जिंदगी में पैसा हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, सबके लिए मेजरमेंट जरूरी है। तो इफ somebody ask you कैन यू रिकॉल व्हाट इज यूनिट, तो आपको इधर देखना नहीं है, उधर नहीं देखना है, आपके दिमाग से फटक से निकलना चाहिए। यूनिट इज नथिंग बट एंटिटी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। अभी आप बोलोगे सर यही लिखना है क्या हमको एग्जाम में? आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया है। मैं आपके जनरल एक्सप्रेशन एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसको इतना अच्छे से समझिए कि कोई उसको घुमा फिरा के पूछे तो आपके पास क्रिस्प एंड क्लियर जवाब होना चाहिए। हर चीज का जवाब घुमा फिरा के लंबा चौड़ा देने की फेंकूगिरी की आदत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम नहीं आती। ये जिसने समझ लिया उसने साइंस को सही तरीके से जान लिया, ऐसा आप बोल सकते। सो लेट अस सी ये कैन यू रिकॉल में क्या क्या पूछ रहे हैं हम लोग। मैंने तो यूनिट की डिफिनेशन आपको दे दी, अभी वो सही है कि नहीं वो आगे देखेंगे। विच यूनिट हैव यू यूज्ड इन अ लैबोरेटरी फॉर मेजरिंग लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। मैं तो आगे जाके इस सवाल को इस तरीके से, लैबोरेटरी को मारो गोली, बताइए मुझे जिंदगी में आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गिना है। ये गिनते वक्त आपको एग्जैक्टली किस किस यूनिट्स का सामना करना पड़ा, इस्तेमाल करना पड़ा। तो चलो हम बात करते हैं लेंथ के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, मास के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए। चलो सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट, चलो चलो जल्दी। चैट बॉक्स आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ओके, मीटर, सेंटीमीटर, लेंथ। संकल्प लिखा मीटर, संकल्प मीटर नहीं, जैसे समीर ने लिखा वैसा लिखो। आपको हमेशा ये दिमाग में लेके चलना है कि आपको फास्ट होना है बट फ्यूरियस नहीं होना है, फास्ट ही रहना है, टेक्निकली क्रिस्प और क्लियर और फास्ट। ओके, केजी वेट के लिए है ना। तो बहुत सारे लोग जो अंदर बाहर कर रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती है नेटवर्क की। मैं सेकंड्स लिखा, बट हमेशा सेकंड्स किसके लिए होता है, ठीक से लिखना पड़ेगा। ओके गुड, सो नाउ लेट्स गेट इनटू समथिंग विच इज ऑलरेडी रिटन। सेल्सियस टेम्परेचर के लिए है, वेरी गुड। तो हमने यहाँ जो देखा, पढ़ा, सुना, लेंथ के लिए भाई मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, इंचेस भी हो सकता है, यार्ड भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, लाइट ईयर्स भी हो सकता है। अब ये लाइट ईयर्स अगर मैं फिजिकली आपके सामने क्लास में होता तो आपको मस्ती करता आपके साथ कि लाइट ईयर्स कैसे लेंथ का यूनिट है मुझे बताइए। बट ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इनके कुछ ड्रॉबैक्स है कि ना टीचर पूरी तरीके से बोर्ड के, मतलब बोर्ड तो हम इस्तेमाल करेंगे बट फिर भी आपके आंखों में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब मुझे देखने नहीं मिलता है। तो प्रोबेबली इस क्लासेस का ये हमेशा से ही ड्रॉबैक रहेगा। बट कांट हेल्प इट कि आप 4 जगह या 40 जगह, कोई औरंगाबाद में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है और हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो लेंथ के बारे में, मास के बारे में हम बात करें तो भाई ग्राम्स है, किलोग्राम्स है, ऑन्स है, पाउंड है, लॉट ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट। टाइम के लिए सेकंड्स है, मिली सेकंड्स है, माइक्रो सेकंड्स है, नैनो सेकंड्स है। टेम्परेचर की जहां तक बात करें, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है ना। आजकल तो लोग थर्मामीटर मुंह में डाल के ही बैठे हैं कोरोना के चलते, तो टेम्परेचर लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैव यू यूज्ड, ये आप सबको पता है क्योंकि आप होनहार बच्चे हो। सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एसआई। ओके, तो एसआई क्या है वो भी पढ़ेंगे, बट पहले हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। तो अभी मैंने बहुत पढ़ लिया, यू हैव टू पुट इन अ चैट बॉक्स हु इज गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ। चलो चलो जल्दी, चैट बॉक्स में कोई अगर लिखना चाहता है तो प्लीज मुझे बताए, सॉरी पढ़ना चाहता है तो चैट बॉक्स में लिखे अपना नाम कि सर मैं पढ़ लेता हूँ। समीर पढ़ो, चलो मैं आपके लिए प्रेजेंट कर देता हूँ। चलो, आपको दिख रहा है क्या अच्छे से? आया होल्ड ऑन। अच्छा बुक्स है तो पढ़ लीजिए, पैराग्राफ इंट्रोडक्शन वाला पढ़ना चालू कर दीजिए। Physics is a quantitative science where we measure various physical quantities during experiments in our day-to-day life. We need to measure a number of quantities, example, size of objects, volume of liquids, amount of matter, weight of vegetables or fruits, body temperature, length of clothes, etc. A measurement. बस बस, हमेशा आप सब लोग जब भी पढ़ते हो ऐसे एकदम ट्रेन की तरह नहीं जाना है जैसे समीर जा रहा था, बट मैं बस बोला तो वो ही वॉज कॉन्शियस, मतलब उसका ध्यान था।
पैराग्राफ पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ना नहीं है। एक्चुअली जब पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं एडवाइस करूंगा खुद कि यू कैन जस्ट स्कीम थ्रू, मतलब जैसे समीर जिस स्पीड से जा रहा था उस स्पीड से आप ये जो तकरीबन 15 पेज का चैप्टर है वो आप 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जब सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो जैसे मैंने उसको रोका वैसे आपको अपने आप को रोकना है। फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस, मतलब भाई मेजरमेंट वाला साइंस है, हर चीज का हिसाब किताब होता है। वेयर वी मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं, मास हो, लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ हो, व्हाटएवर। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट कोई भी करना है तो भाई कुछ पैरामीटर्स है जिनका मेजरमेंट होना जरूरी है। इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो वी नीड मेजरमेंट्स, जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी साइज गिननी है तो हम लंबाई, चौड़ाई, उसकी हाइट, डेप्थ ये नापते हैं कि नहीं। फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए हमको 3 चीजें चाहिए, LBH, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। फिर अमाउंट ऑफ मैटर के लिए क्या यूज करते हैं, मोल नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको केमिस्ट्री में आदित्य सर है वो अच्छे से पढ़ाएंगे। देन वी विल गो टू द वेट ऑफ द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, बॉडी टेम्परेचर, या फिर लेंथ ऑफ द क्लॉथ। लेंथ ऑफ द क्लॉथ में हम कभी भी जाके ऐसे नहीं बोलते कि मैं 1 मीटर कपड़ा लेके आया, एक्चुअली बोलते हैं, बट वो 1 मीटर के साथ इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ एक विड्थ है जिससे हमारा पैंट का कपड़ा आता है या शर्ट का कपड़ा आता है। तो 1 सवा मीटर में शर्ट बनता है, 1 सवा 1.5 मीटर में पैंट बनता है, बट उसका विड्थ हम कभी भी नहीं गिनते। तो ये जो नजरअंदाज जिंदगी भर हम करते आ रहे चीज, ये शायद आप साइंस पढ़ना और समझना चालू करोगे तो आप उसको देखने की कोशिश करोगे। नहीं तो फिर आप राजा बनो, नहीं तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनो, यू विल नेवर थिंक कि कपड़े को विड्थ भी जरूरी है, तब एरिया आएगा, और एरिया के हिसाब से बॉडी का एरिया पकड़ के एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द क्लॉथ होगा। बट नोबडी गिव्स सो मच इंपॉर्टेंस टू सच अ स्मॉल थिंग जिनसे बड़ी बड़ी चीजें बनती है। चलो आगे का कौन पढ़ेगा, समीर ने अपना काम कर लिया। एनीबडी वांट टू रीड, प्लीज वॉलंटियर। मैं आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी देखना चाह रहा हूँ क्योंकि अथर्व शेके, ओके, सो नेक्स्ट इज अथर्व देन संकल्प। So we go with Atharva for the first paragraph. Atharva ji, please start. Atharva, I am not able to hear you. A measurement always involves a comparison with a standard measuring unit which is internationally accepted. For example, for measuring the mass of a given fruit, we need standard mass units of 1 kilogram, 500 gram, etc. These standards are called units. The measured quantity is expressed in terms of a number followed by a corresponding unit. Example, the length of a wire is written as 5 meter, where m, meter, is the unit and 5 is the value of the length in that unit. Different quantities are measured in different units. Example, length in meter, time in seconds, mass in kilogram, etc. The standard measure of any quantity is called unit of that quantity. थैंक यू वेरी मच। तो 2 बच्चों ने तो प्रूव कर दिया कि वो बहुत अच्छे से रीड करते हैं, मतलब 10वीं तक उन्होंने सिंसियरली पढ़ाई की है। तो अभी जो हमको अथर्व ने पढ़ के सुनाया उसका समराइज्ड फॉर्म ये है कि कभी भी कुछ भी मेजर करना है तो हम कंपेयर करते हैं। सब्जी वाली या मच्छी वाली या कोई भी अपने घर पे आता है तो वो एक चीज लेके आता है जिसको हम बोलते हैं भाई ये वजन है, 1/4 किलो का, आधा किलो का, 1 किलो का, और वो एक तराजू के पड़ने में जाता है और दूसरे में वो जो सामान हम खरीद रहे वो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि लेंथ का भी मेजरमेंट होता है, टाइम का भी मेजरमेंट होता है, तो शायद इमीडिएटली आपके दिमाग में न आए कि कंपेयर किसके साथ करेंगे, कौन से तराजू में डालेंगे। तो इसी के लिए ये चैप्टर बना हुआ है कि इन फर्स्ट 10-20% सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट 1 रिगार्डिंग मेजरमेंट वी विल बी लर्निंग अबाउट स्टैंडर्ड डायमेंशंस, स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट, इन मेजरमेंट के कुछ डायमेंशंस, उनके वैरायटी ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, और फिर इनसे हम एक हिसाब किताब खेलेंगे जिसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये पैराग्राफ में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि यू ऑल नो देयर इज कंपैरिजन, और उस कंपैरिजन से ही हम हमेशा हमारी चीजें नापते हैं, मतलब मेजर करते हैं। तो ये मेजर करने वाली चीज में उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब भी मैं बोलता हूं कि कोई वायर की लेंथ 5 मीटर है
तो भाई मीटर उसका यूनिट है, और 1 मीटर से 5 गुना लंबी ये वायर है, इसलिए वो 5 मीटर है। तो 5 जो है भले स्केलर है, बट ये मल्टीपल है, जो आपको बताता है कि कितना मल्टीपल है एक स्टैंडर्ड वैल्यू का जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अभी जब मैं ये इंग्लिश में बातों को घुमाता हूँ, ये बात आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप 11th में हैं। जो कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे ठीक से नहीं समझ में आई, उसको थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना जरूरी है कि एक बार कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको 2 बार पढ़नी है, 2 बार के बाद 3 बार, 3 बार के बाद 4 बार, 4-5 बार कोई भी एक चीज आप दिमाग ठंडा रख के पढ़ोगे शांति से, दुनिया की हर चीज समझ में आती है। वही एक फर्क है जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है और अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहता है, और जो कुछ नहीं करना चाहता सिर्फ फेंकना चाहता है। तो आप इस तरीके के बच्चे नहीं है, ऐसा दोनों के रीडिंग से लगा। नाउ वी गो इनटू द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड वी हैव नेक्स्ट वॉलंटियर व्हिच इज संकल्प। संकल्प चलो कंटिन्यू 1.2। System of units. In our earlier standards, we have come across various system of units, namely, first CGS, centimeter gram second system, second MKS, meter kilogram second system, third FPS, foot pound second system, fourth SI, System International. The first three systems, namely CGS, MKS, and FPS, were used extensively till recently. In 1971, the 40th International General Conference on Weights and Measures recommended the use of International System of Units. This International System of Units is called the SI units. As the SI units use decimal system, conversion within the system is very simple and convenient. Thank you, Sankalp. Wait, now I'll just explain this. You all know what is this. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था 10th 11th में कि जो 7वीं 8वीं में पढ़ा वही फिर से रिपीट क्यों करते हैं, उससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, पढ़ना भी नहीं पड़ता। पर आपको पढ़ना है क्योंकि ये सारी चीजें आपको इंटर कन्वर्जन में काम आएंगी। और जो 12th के बाद आपका टारगेट है उसको अभी से अगर ये चीज एक बार पढ़ के आप दिमाग में रखोगे तो 12th के जो बाद एग्जाम्स होते हैं सिलेक्ट, जैसे सीईटी की बात करें, जीई की बात करें, तो इन सब एग्जाम में आपको प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। सो कंसिडरिंग एंड कीपिंग दैट इन माइंड, we will continue with these details, but before that I just want to know, say CGS में C for centimeter है, G for gram है and S for seconds है, MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड्स है, FPS में फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है। सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनली फॉलो किया हुआ सिस्टम है। मुझे कोई ये बताएगा कि आपको इंटर कन्वर्जेंस तो पता है ना, जैसे फीट मतलब कितना इंच, इंच मतलब कितना मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, पाउंड्स मतलब कितना किलोग्राम, किलोग्राम मतलब कितना ग्राम, सेकंड्स मतलब कितना मिलीसेकंड, कितना मिलीसेकंड मतलब कितना माइक्रोसेकंड। जिनको ये सब चीज जो मैं बोला वो नहीं पता वो नो लिखेंगे चैट बॉक्स में, और जिनको पता है उनको यस बोलेंगे प्लीज। समीर, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स हमको बहुत सारे पढ़ने हैं, आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी इधर कोई नो भी नहीं लिख रहा है, कोई यस भी नहीं लिख रहा है। तो संकल्प ने यस लिखा, मतलब मैं सवाल पूछूंगा तो संकल्प यस जवाब देने वाला है। अथर्व ने नो लिखा, ओके ठीक है। अमीशा ने भी नो लिखा। चलो नेक्स्ट, आर्या। नो, इधर नो वाले ज्यादा लोग हैं। ओके तो चलो नो वालों को यस पहले करते। सी क्या होता है, जैसे समीर का सवाल जो है उसी का आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं जो आपके नो के लिए भी आंसर है। व्हाई एसआई सिस्टम? सिस्टम इंटरनेशनल क्यों चाहिए, मतलब इंटरनेशनली एक ऐसी सिस्टम क्यों चाहिए मेजरमेंट की? क्योंकि अगर इंटरनेशनली एक ही चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सोचिए कोई ब्रिटेन से आया और वो बोल रहा है कि मुझे 5 फीट लंबा कपड़ा चाहिए, और हम बोल रहे हैं कि नहीं हम आपको 5 फीट नहीं देंगे, हम आपको देंगे तकरीबन एक 1.5 मीटर। तो अभी समझेगा कैसे कि दोनों एक बोल रहे हैं कि दोनों अलग बोल रहे हैं? तो जगह के हिसाब से जैसे भाषा बदलती है, जगह के हिसाब से जैसे आचार विचार और आपकी परंपराएं बदलती है, वैसे ही जगह के हिसाब से इंसान ने जब मेजरमेंट का सिस्टम डेवलप किया तो शायद उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के सोच और मेजरमेंट के टेक्निक्स में कहीं अंतर था। उसको स्टैंडर्डाइज तो बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वायरस यहाँ से वहां जाता है इंसान के कारण, तो इंसान जा रहा है ना यहाँ से वहां,
मतलब हिंदुस्तानी व्यक्ति कभी अमेरिका जाने वाला है, अमेरिकन व्यक्ति कभी ब्रिटेन आने वाला है, ब्रिटेन वाला कभी मंगोलिया जाने वाला है। तो ये सब लोग जब घूमेंगे और एक दूसरे के साथ टेबल पे डिस्कशन कम और मारामारी ज्यादा करेंगे ना, क्योंकि हर कोई अलग अलग भाषा में अलग अलग टेक्निक में बोलेगा तो तकलीफ होगा। तो इनको एक साथ लाने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बना। क्या बना? मतलब कन्वर्जेंस। जैसे मैं बोलूंगा कि 1 मिलीमीटर का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब सॉरी 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर, या 1 मीटर का मतलब होता है 1000 मिलीमीटर, या मैं बोलूंगा 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर, या मैं बोलूंगा 1 इंच का मतलब होता है 25.4 मिलीमीटर। तो आप बोलोगे ये आपको सबको ऐसे पता? मैं ये दिन भर इस्तेमाल करता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जब कोई इक्विपमेंट बनाना जाता हूँ, बनाने जाता हूँ कई वेंडर के यहाँ, मैन्युफैक्चरर के यहाँ, तो मुझे उसको जो ड्राइंग देनी होती है उसके ऊपर मुझे कुछ लिखना होता है। बट लिखने के पहले जो मैं डाटाबेस सर्वे करता हूँ वो ब्रिटेन का भी होता है, रशिया का भी होता है, बहुत सारे देशों का होता है। हर एक के अपने अपने यूनिट्स होते हैं। उनको कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो बचपन से एकेडमिक्स पढ़ा और बीच में जो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट की जरूरत समझी, वो सारी चीजें अभी मेरे दिमाग में एकदम अच्छे से सटीक से बैठी है। तो मैं ओरली ये सब चीजें करता हूँ। आपके लिए ये तकलीफ की जरूरत नहीं, क्योंकि आप छोटे हैं। आपको ये सारी चीजें आपके किताब में दी जाएंगी। बट जब एक बार आपको ये पढ़ाया जाएगा किताब में कि इंच मतलब कितना सेंटीमीटर, फीट मतलब कितना मिलीमीटर, या फिर माइक्रोसेकंड मतलब कितना सेकंड, तो आपको ये सारी चीजें कहीं नोट डाउन करनी है। आपके 12th तक के पढ़ाई में आपको कुछ सेक्शंस बनाने हैं आपके अलग अलग नोटबुक के, जहां आप सब्जेक्ट के फार्मूला लिखते हो, डेफिनेशंस लिखते हो, कुछ स्पेसिफिक थ्योरम्स लिखते हो, क्योंकि ये चीजें समझे बगैर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन 11th 12th जी मेंस, जी एडवांस, सीईटी में एक्चुअली काम नहीं आएगा। तो इसके लिए चाहिए सिस्टमेटिकनेस। तो समीर के सवाल का जवाब हमने दिया, बाकी 9 के सवाल का हमने पूरी तरह जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतने सारे यूनिट्स है, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सबके यूनिट के कन्वर्जन में हर एक सिस्टम में बताने जाऊंगा तो इट विल टेक 1 डे। तो जब भी आपके इस सिलेबस में आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप बोलेंगे हमको खुद से पढ़ना है, नथिंग, यू हैव टू जस्ट राइट what are the various fundamental units, what are the various derived units in physics, and you will get lot of extra information to read on the internet. Sorry, मैं भूल गया कि अपना समय खत्म होने आ गया। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल जाता हूँ बोलते बोलते। तो जस्ट हम आज यहाँ पे खत्म करते हैं जहाँ पे हमारे लिए संकल्प ने पढ़ा, दैट इज ओनली फर्स्ट पेज का आधा हिस्सा। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ये मैं पढ़ाऊंगा कि कोई और सर पढ़ाएंगे मुझे मालूम नहीं, बट जब भी आपको कोई जरूरत होगी देन आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल वंस इन अ ब्लू मून। बट आपको जो आगे पढ़ाएंगे टीचर वो तभी पढ़ाएंगे आपको जब आप सबको वो सही लगेगा। सबकी तरफ से जो फीडबैक मुझे पर्सनली आएगा व्हाट्सएप, और दूसरा एक फॉर्म भरना होता है। एक मैं आपको डेली फॉर्म भेजूंगा, एक फॉर्म आपको भेजूंगा जो अटेंडेंस का होगा। टेम्परली आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका अटेंडेंस भेज दीजिए कि आज हम इस समय एंट्री किया, इस समय गए। और एक चीज भेजनी है, आपका पूरा नाम, आपका पूरा जीमेल, आपका एड्रेस, आपका प्रपोज्ड कॉलेज, और आपके 10th के परसेंटेज, और आपको भेजना है कि 12th के बाद आप क्या करना चाहते हो। तो उस हिसाब से जब भी मेरे जनरल लेक्चर होंगे तो मैं आपकी जरूरतों को एड्रेस करूंगा। होपफुली इट इज सफिशिएंट, क्योंकि इतना ही हम दे सकते हैं, बट और कुछ डिस्कशन से निकला तो वी विल ट्राई टू डू दैट। आज यहाँ पे एक ही अननोन स्टूडेंट है, दैट इज साइरस केल्विन। अभी ये जो साइरस केल्विन कोई है या स्टूडेंट है या आपका कोई और लॉगिन है, तो आप जरा अपने आप को मुझे व्हाट्सएप द्वारा इंट्रोड्यूस करिए। इसलिए मैं 9967 मेरा नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9967584554। दिस इज द नंबर वेयर यू विल बी इनिशियली कनेक्टेड बाय व्हाट्सएप, और फिर बाद में आप कनेक्ट हो जाएंगे जो कोऑर्डिनेट करेंगे इस पूरे सेशन को, शंकर सर और मंगलम मिश्रा सर। तो ये 2 सर है जो आपके इमीडिएट काउंसिलर है, टीचर है, और उनके बाद मैं और वैशाली मैडम हम इस पूरे इवेंट को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आपके पास मेरा नंबर मिल गया। मैंने आज आपका 1 घंटा लिया, इसमें जनरल इंट्रोडक्शन दिया, ज्यादा पढ़ाया नहीं, बट वो इंटरेस्ट भी और इंटेंशन भी नहीं था। बहुत ज्यादा बारिश थी,
समीर को नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, आर्या को प्रॉब्लम हो रहा था, लग रहा था आदित्य जोशी सर को भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ये लोग बहुत अंदर बाहर हो रहे थे. बट देन काइंडली मतलब इट्स ओके, यू ऑलवेज ट्राई टू लर्न वन थिंग, ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप जब एब्सेंट रहेंगे तो आपको ये प्राइवेटली शेयर किया जाएगा ताकि आप इस चीज को समझ सके. और फिर भी कुछ समझा नहीं तो हम ये कोरोना का क्राइसिस जाने के बाद कभी ना कभी तो संडे एक 2-4 घंटे के लिए डायरेक्टली शिरढोण में मिलेंगे, ताकि आपका जो फिजिकली इंटरेक्शन का चीज होने वाला नहीं है उसको हम करने की कोशिश करेंगे. सो फुली जैसे भी आपको ये लगा होगा उसका फीडबैक मुझे भेज दीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग एंड बीइंग वेरी डिसिप्लिन. साइरस जी, आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे भेज दीजिए. अभी आप कुछ लिखना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो यू कैन जस्ट लीव द क्लास. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. गुड नाइट. चलो एवरीबडी प्लीज लीव द मीटिंग एट अर्लीस्ट. चलिए 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 जल्दी, चलो जल्दी. थैंक यू. टाटा. बाय बाय.